आज हम लोग सेट नंबर 1 भौतिक विज्ञान सेट नंबर 1 एफएस के शेष प्रश्नों पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय ड्राइंग अ रे डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्टेबलाइज द फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर फॉर इट। यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए। इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। आइए हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के रे डायग्राम के बारे में समझते हैं। यहां पर अदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है और सेकेंड जो लेंस होता है वो आई लेंस लगा होता है। When a body of AB placed in front of the objective lens, then after refraction it's bent to the focus of objective lens and intersect the optical center of eye lens and other line drawn from optical center of objective lens to cross and intersect the eye lens also. Then at the point of intersection and objective image A dash B dash is formed. Then a perpendicular drawn from point B dash to eye lens. Then ray of light, after scattering, the ray of light passes through the eye lens and form its a virtual image at the distance of D. Virtual image A double dash and B double dash. आइए अब हम लोग इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में समझते हैं, यानी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम रिलेशन प्रोड्यूस करेंगे। वी नो डेट मैग्नीफाइंग पावर M is equal to beta upon alpha, where beta is visual angle of image and alpha is visual angle of object. अल्फा, जहां अल्फा अदृश्य के लिए यानी वस्तु के लिए दर्शन कोण का काम करती है तथा बीटा प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण का काम करती है। इट इज ऑल्सो राइट एज M is equal to बीटा इज डिनोटेड एज tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। According to ray diagram, tan beta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is denoted as A dash B dash and base is also denoted as AE.
A dash E, and alpha is represented as tan alpha. Tan alpha is equal to AB upon AO. Therefore, M is equal to tan beta upon tan alpha. Tan beta upon tan alpha. Tan beta is denoted as A dash B dash upon A dash E. A dash B dash upon A dash E upon tan alpha is denoted as tan alpha is AB upon AO. AB upon AO. AB upon AO. It is also write as M is equal to A dash B dash upon AB into AO upon AO upon A dash E. According to figure, A dash E is denoted as UE. A dash E is denoted as UE. And AO is also denoted as distinct division of ID, and therefore M is equal to A dash B dash. A dash B dash is denoted as A dash B dash is denoted as image of objective lens I upon O into AO is denoted as AO is denoted as capital D, and AO is denoted as capital D upon minus UE. I upon O, image upon object is M upon O is denoted as M naught. It is also denoted as V naught upon U naught. Therefore, M is equal to माइनस सिंबल आगे ले लेंगे, माइनस V naught upon U naught into D upon UE. M is equal to minus V naught upon U naught into D upon UE, because I upon O is equal to M naught is equal to V naught upon U naught. We know that 1 upon Fe is equal to 1 upon VE minus 1 upon UE. For our objective lens, for an eye lens, and multiplying by capital D both side, D upon Fe is equal to D upon VE minus D upon UE
For the length, VE denoted as, for the eye length, VE denoted as minus D and UE is equal to minus UE. Therefore, D upon FE is equal to minus D upon D और फिर माइनस D upon minus UE. It is also denoted as D upon FE. D upon FE is equal to minus 1 और प्लस D upon UE. Therefore, D upon UE is also write as 1 plus D upon FE. D upon FE. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. Therefore, magnifying power of macroscope M is equal to minus B naught upon U naught in bracket D upon UE. Place the value of D upon UE. D upon UE is equal to 1 plus D upon F. Therefore, M is equal to minus V naught upon UE in bracket D naught upon U naught. U naught 1 plus capital D upon FE. M is equal to where V naught is equal to distance of image of object and U naught is equal to distance of object for object, distance of object from image from lens, and D is a distinct division of eye. And FE is focal length of eye lens. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 के अथवा वाले प्रश्न पर विचार करते हैं, यानी आर वाले प्रश्न पर विचार करते हैं. इन अ सर्किट द इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिव V is represented by V is equal to 40 sin 100 pi t volt. Here T is in second. Draw the time voltage graph with proper scale for one cycle. Calculate the root mean square value of the voltage.
हिंदी में देखते हैं, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V, समीकरण V बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय t सेकंड में, समय बोलता टीबी ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए। वोल्टेज का वर्ग माध्मूल मान भी ज्ञात कीजिए। वोल्टेज का वर्ग माध्मूल मान भी ज्ञात कीजिए। इफ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इट इज ऑल्सो राइट एज V इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 40 साइन 100 पाई टी। देयरफॉर V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई एफ टी। देयरफॉर V नॉट इज इक्वल टू 40 वोल्ट। V नॉट इज इक्वल टू 40 वोल्ट। para फार्मूला B इज इक्वल टू 40 साइन 100 पाई टी, B इज इक्वल टू 40 साइन 100 पाई टी। देयरफॉर the time taken in alternating circuit of one cycle is denoted as capital T. It denoted as capital T. Capital T is equal to time period. जिसे हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल। हम जानते हैं दिया गया है V इज इक्वल टू 40 साइन 100 पाई टी। इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज V इज इक्वल टू 40 साइन एंड ओमेगा टी। taking the point at A and B and C and D when voltage travel from A to B. Therefore time taken in quarter revolution यानी एक चौथाई पथ को तय करने में जो समय लगेगा वो हमें T इज इक्वल टू स्मॉल t बाई 4 लगेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, where f is the frequency of AC circuit. T is equal to T by 4 and omega is equal to 2 pi f. Therefore, it is also written omega is equal to 2 pi by capital T. 2 pi by capital T. 2 pi by
कैपिटल टी, इस प्रकार लिखा जा सकता है। इन अ फर्स्ट कंडीशन वी नो दैट v इज इक्वल टू 40 साइन ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू लिख देंगे यहां पर कैपिटल टी बाई 4। यहाँ पे लिया जाएगा, यहाँ पर लिया जाएगा स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 4। देयरफॉर इन अ फर्स्ट कंडीशन v इज इक्वल टू 40 साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, कैपिटल टी बाई 4, कैपिटल टी बाई 4। इट इज ऑल्सो राइट एज v इज इक्वल टू 40 साइन और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स साइन 90, पाई बाई 2 मीन्स साइन 90, पाई द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 180 एंड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90। v इज इक्वल टू 40 एंड साइन 90 डिग्री, v इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 40 वोल्ट। फर्स्ट कंडीशन में 40 वोल्ट और ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। व्हेन AC voltage cross to B to C, it means its displacement is A to C. Therefore in second condition स्मॉल t इज इक्वल टू हो जाएगा, अब की बार हाफ साइकिल के लिए काम करेगा, हाफ साइकिल के लिए काम करेगा, इसलिए t बाई 2 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। देयरफॉर v इज इक्वल टू 40 साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी बाई 2, v इज इक्वल टू 40 साइन और ये हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू होती है साइन पाई की वैल्यू 0। देयरफॉर v इज इक्वल टू 40 इंटू 0, v इज इक्वल टू 0। सेकेंड टर्म्स में v इज इक्वल टू 0। when alternating voltage reach at the point D, therefore थर्ड कंडीशन में D पे पहुंचेगा तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 3t बाई 4, 3 कैपिटल T बाई 4 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T। देयरफॉर v इज इक्वल टू 40 साइन ओमेगा की जगह प्लेस कर देंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू 3t बाई 4। इट इज ऑल्सो राइट एज v इज इक्वल टू 40 साइन 40 साइन और इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। इट मीन्स v इज इक्वल टू हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 40 और साइन 270, साइन 270 द वैल्यू ऑफ साइन 270 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर v is equal to 40 into -1, v is equal to -40 volt। In the fourth condition, when voltage find the one cycle, it means it reach at point A। Therefore in a fourth condition स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T। देयरफॉर
V इज इक्वल टू 40 साइन ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू टी। इस तरह से V इज इक्वल टू मिलेगा 40 साइन, और यहाँ पर टी कट जाएगा, 2 पाई को लिख सकते हैं 360 डिग्री, और साइन 360 की वैल्यू होती है 0। द वैल्यू ऑफ साइन 360 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर V इज इक्वल टू 40, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसलिए V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार एक चक्कर में वोल्टेज का ग्राफीय निरूपण कुछ इस प्रकार होगा। जहाँ पर वोल्टेज बनेगा 40 वोल्ट, और टाइम यहाँ पर टाइम टेक करेगा यहाँ पर कैपिटल T बाई 4 एट द पॉइंट, टाइम टेक करेगा T बाई 2 एंड विल बिकम 0 एट 270। यहाँ पर होगा -40 वोल्ट, और यहाँ पर टाइम जो टेक करेगा वो 3T बाई 4, और यहाँ पर पूरा एक चक्कर लगा लेगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा 1T कैपिटल T, और इस तरह से इसका ग्राफीय निरूपण आपको मिल गया है। अब आपका प्रश्न ये कहता है, ये आपका ग्राफीय निरूपण हुआ। आपका प्रश्न ये कह रहा था कि एक साइकिल के लिए यानी एक चक्र के लिए आपको ग्राफ बनाना था। क्या बनाना था? ग्राफ बनाना था। और फिर आगे ये कह रहे हैं कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, यानी वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात कीजिए। अब वोल्टेज के वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करने के लिए अभी हमने देखा कि V0 इज इक्वल टू आया था आपका 40 वोल्ट, तब देयरफॉर BRMS इज इक्वल टू V0 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 40 अपॉन रूट 2। इट इज ऑल्सो राइट है BRMS इज इक्वल टू 20 रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2। BRMS इज इक्वल टू 20 रूट 2 20 रूट वोल्ट। It is also write as VRMS is equal to 20 into 1.414 VRMS is equal to 28.28 वोल्ट। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। व्हाट इज द एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म? डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक
diamagnetic and ferromagnetic substances on the basis of on this basis also give one example of each. चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए. आंसर है इसका एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म. एवरी सब्सटेंसेस इज मेड अप ऑफ द एटम in which electron moves in a fixed orbit. In orbit there are orbital motion and a cyclic motion takes place, in which the electron form a magnetic dipole moment and show the magnetic property. हिंदी में देख लेते हैं. चुंबकत्व का परमाणुिक मॉडल. प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं तथा दो प्रकार की गतियां उत्पन्न करते हैं, जिन्हें कक्षीय गति व चक्रीय गति के रूप में हम जानते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन द्विध्रुव का निर्माण करते हैं तथा चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. अब हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्लासिफाइड करते हैं. दो सब्सटेंसेस in which atom has permanent magnetic dipole moment, those are behave like a domain at a small charge of temperature, and dipole moment of substances is 0. Those substances are known as a paramagnetic substances like a aluminium, सोडियम, लिथियम एटसेट्रा. अनुचुंबकीय पदार्थ. अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो नन्हे दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है. प्रत्येक प्रमाणित दंड चुंबक छोटे छोटे द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, जो कम ताप पर पूर्णतया संरेखण प्रदर्शित करता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है. उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम इत्यादि. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी. अब हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव नो इंट्रिंसिक एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट एंड हैव द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो नो इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फ्रीली व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. They induce a weak magnetic dipole moment in the opposite direction of the applied field. एग्जाम्पल है सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा. प्रतिचुंबकीय पदार्थ. वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकीयकृत हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं. इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है. इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, जैसे तांबा, चांदी, सोना, यहाँ पर लिख सकते हो कॉपर भी. फिर बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक की.
ferromagnetic substances. A ferromagnetic substances is a material that can be strongly magnetized by an external magnetic field and can retain that magnetization even when the field is removed, as iron, cobalt, etc. लौह चुंबकीय पदार्थ में सभी अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं जो जटिल अन्योन क्रिया द्वारा वह चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, डोमेन बनाते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट इत्यादि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का अथवा प्रश्न है, देयर इज अ मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट रेज ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म n is equal to √3 if angle incidence is twice the angle of refraction for this ray, then what will be the angle of prism and the angle of refraction? एक प्रकाश की किरण प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक n बराबर √3 है में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है यदि इस एक मिनट रुकिए, यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दूना हो तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे। आपको दिया गया है n is equal to √3 एंड I is equal to आपतन कोण जिसे हम I से व्यक्त करते हैं इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट I is equal to 2 small r, where r is the angle of refraction एंड प्रिज्म एंगल फाइंड करना है आपको फर्स्ट, और r भी फाइंड करना है आपको। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n is equal to sin I upon sin r, n is equal to sin I upon sin r। According to Snell's law, sin I upon sin r is equal to n। Therefore, according to question, n is equal to n given है √3 is equal to sin I upon sin r। I is placed at √3 is equal to sin I is also write at 2r upon sin r। The formula sin 2r is also write at √3 is equal to 2 sin r into cos r upon sin r। Therefore,
√3/2 is equal to cos r. It is also write as cos r is equal to √3/2 is equal to cos 30 degree. Therefore r is equal to 30 degree. आपका एक आंसर है, आपका एक रिक्वायर्ड आंसर है, r is equal to 30 degree. We know that I is equal to I के बारे में हमें चर्चा ही नहीं करनी है, हमें देखना है A is equal to also write as 2r. Therefore प्रिज्म एंगल A is equal to हो जाएगा 2 इंटू R की वैल्यू है 30 डिग्री, A is equal to 30 डिग्री, A is equal to 60 डिग्री, A is equal to 60 डिग्री. इस तरह से हमें इसका रिक्वायर्ड आंसर फाइंड हो जाता है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. अगला क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9th नंबर क्वेश्चन है. कंपेयर द फीचर ऑफ एन टाइप पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड एक्सप्लेन इट. पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के लिए अभिलक्षणों की तुलना कीजिए. पी एन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए. पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर P type and N type. When फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, when pure semiconductor, are blended with trivalent impurities to form P type semiconductor. एन टाइप के लिए लिखेंगे when pure semiconductor is blended with pentavalent
impurities pentavalent impurities to form n type conductor. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पी टाइप और सेकेंड साइड में लिखेंगे एन टाइप। सेकेंड नंबर लिख लीजिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस whole carrying current in second case n type semiconductor produce electron carrying conductor. थर्ड लिख लीजिए इन पी टाइप सेमीकंडक्टर holes एंड थर्ड नंबर इसके लिए लिख लीजिए इन एन टाइप सेमीकंडक्टर carrying semiconductor in p type semiconductor holes in a majority in n type semiconductors electrons in majority. इसका हम लोग हिंदी में देख लेते हैं पी टाइप और एन टाइप। अभी आपने देखा था जब निज अर्धचालक जब निज अर्धचालकों को त्रिसंयोजी
अपद्रव्य नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं इसको। लिख लीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप और दूसरी तरफ लिख लीजिए एन टाइप। फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, जब किसी निज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य के रूप में अपमिश्रित किया जाता है, तब पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। दूसरा है, पहला नंबर है इसका, जब निज अर्धचालक को पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है, तब एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। नंबर 2, पी टाइप अर्धचालक कोटर वाहक होते हैं। नंबर 2 है एन टाइप अर्धचालक इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं। इनमें
ओटर, बहुसंख्यक होते हैं। नंबर तीसरा है इनमें इलेक्ट्रॉन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें कह रहा था पीएन डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। पीएन जंक्शन डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें एसी स्रोत से यहाँ पर एसी सोर्स दिया जाता है, इसको एसी और लोड रेजिस्टेंस, और दूसरी तरह से पी एंड एन। इसमें सॉफ्ट आयरन कोर भरी होती है। इनमें इनपुट होता है, इनपुट के लिए
इसके लिए इनपुट होता है AC और यहाँ से आउटपुट होता है DC, और वो भी हाफ वेव के रूप में। ये DC, ये है आउटपुट, निर्गत, और यहाँ पर निवेशी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसकी के अथवे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। स्टेट गॉस's लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजिंग इट। फर्स्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एंड सेकेंड है डिड्यूस कूलॉम्स लॉ बाई सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज Q। लिख लीजिए यहाँ पर गॉस's लॉ, गॉस का नियम, गॉस का नियम। किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं का रैखिक समाकलन उस पृष्ठ को दिए गए आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। GUASS गॉस's लॉ। लाइन इंटीग्रल चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। गॉस's लॉ, the line integral
line integrals of electric field line is the product of one upon epsilon naught times of यहाँ पर लिखना है 1/epsilon naught टाइम्स 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ charge on conductor. Therefore, linear integral E del A is equal to Q upon epsilon naught. If charge Q is uniformly distributed over the sphere of radius r, therefore phi E integral linear integral del A is equal to Q by epsilon naught E इंटू डेल ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 4πr², therefore E इंटू 4πr² is equal to Q by epsilon naught. Then E is equal to 1 upon 4π epsilon naught Q by r². ये आपका फर्स्ट आंसर था. सेकेंड पार्ट है इसका. सेकेंड पार्ट, इसके लिए हम लोग गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना. डिडक्शन ऑफ
टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इसको इसकी तरफ लाना है और फोर्स बताना है। वी नोटेड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। व्हेन a test charge Q naught placed near to a charged sphere हम जानते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यदि किसी परीक्षण आवेश को गोले के अति समीप लाएं तब F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू Q नॉट E, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। देयरफॉर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इट इज नोन एज ए कूलॉम्स लॉ, जिन्हें कूलाम के नियम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा और हम आपके लिए इसी प्रकार अनसॉल्व्ड तैयार करवाते रहेंगे और आप सभी हमारे साथ जुड़कर अपने इस अनसॉल्व्ड सेशन को कंप्लीट कीजिए, जिससे अधिक से अधिक मार्क आप अर्जित कर सकें।